Okay. Hi everyone. Very good evening to all. Just let me know. Screen and voice are proper now. Okay. So today we have to start the second topic, that is the understanding of file system and hard disk. So I guess that is the long topic. So मुझे लगता है कि it will take like 2 to 3 classes. जितना मैंने CHFI के modules और from the question bank and all मैंने जितने analyze कर रखी. Okay. So whatever the sessions or topic we have covered in the last session, I have shared like articles about the chain of custody. So you guys have studied that. The first module, the phases, methodology, and data retrieving types. Those topics are clear. Parallelly, you guys have to revise that whatever we are studying. Okay. हम वैसे भी बहुत कम कम टॉपिक्स देखते हैं. मेघा, that is clear ना? Any doubts? Okay, no. Fine. So let's just start. And in the last of this particular session, I'll ask some of the questions from anyone I can ask. Okay. So I'll see how many of you are like attending seriously, or like whatever I'm teaching you guys are like revising properly. So let's just write, we just have to understand file system. So the first day rough notes I have shared, and the second day or like understanding of file system and hard disk, we are just studying right now. So after this session, I will share that too, so that you guys can just pick some topics and refer from there. Okay. So file system we have to study. Roughly, I am just like writing. Later on, whatever the topics I'm writing, you guys have to explore in a detailed way after this session. And for the reference, you guys can refer any sample PDF for CHFI exam. I'm trying to find out the exact question, but I think it will take some time. So in between 1 or 2 days, whenever I'll find that, क्योंकि उसके भी कुछ charges लग रहे थे, कुछ particular websites वगैरह में. So I'll try from some other resources, and then I'll definitely share. Okay. So before further proceeding on a file system, we have three category or like three OS we can say. First one is that Windows. And according to that, we just have to explore the file system. Like what are the file structures or like storing or that hierarchy in Windows or Windows OS or like Mac OS or Linux, something like that. Okay. So Windows, Linux, and mainly three OS we just have to explore. Okay, this one. So Windows operating system. Can anyone tell me what's the third name I have written? Because I guess 1 or 2 questions are there from with the name that I have whatever I have written. No? And students are leaving or skipping those questions. There is anyone? OS X? No. Is there is any other? अभी मैं पीटूंगा अगर किसी का राइट आंसर नहीं आया तो. यस. बाकी लोगों को पता नहीं था ना. अब तो गूगल कर लिया होगा. So third one is Mac OS. Okay. And that is the, आप इसको जो भी जैसा भी प्रोनाउंस कर लो, ठीक है, Macintosh या जैसा भी आपको लगता है. So that is a Mac OS actually. Mac is OS ऐसा कुछ करके इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, बट छोड़ो हमें उससे क्या मतलब. So this is the Mac OS.
So 3 file system we just have to study. First one is that Windows OS and Linux OS, and that third one is that Mac OS. Okay. Let's just like briefly discuss some points about that. So इसके पहले कि हम Windows based file system को देखें, I'm writing some of the points. Windows is actually किस पे बेस्ड है बताओ? विंडो किस पे बेस्ड है? यूनिक्स बताओ पहले. लिनक्स तो यूनिक्स पे बेस्ड है, राइट? मैक ओएस, आई एम लविंग द माइक्रोफोन. इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो जिनको आता होगा बताते चलना. मैक ओएस किस में बेस्ड है? यूनिक्स. यूनिक्स, राइट. यूनिक्स पे बेस्ड है. समटाइम्स ठीक है, ये प्रॉपरली एक डिस्ट्रीब्यूशन आती है, BST डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके थ्रू इसके सोर्स कोड को कॉपी किए गए हैं. तो जितने भी डिटेलिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ, योर टास्क इज टू एक्सप्लोर दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन अ डिटेल्ड वे. एंड विंडोज DOS. MS DOS वी कैन से, लेकिन वो तो खुद ही एक सबसे इनिशियल बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम था. दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ बेस्ड वी कैन से. बट विंडोज का अपना खुद का विंडोज, सबसे पहले जब विंडोज निकलते थे ना, वो 95 और उसके अराउंड 2000 के अराउंड अराउंड जो विंडोज आते थे, तो उस टाइम पे विंडोज की एक एंटी वर्जन भी आती थी. सो विंडोज एंटी कर्नल एक्चुअली इस पे बेस्ड है ये. तो डोस वगैरह पे ऐसा कुछ नहीं, आई एम राइटिंग देयर. विंडोज एंटी कर्नल पे बेस्ड है, एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसलिए ये सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं. ओके, सो फर्दर इन अ शॉर्ट रिव्यू, इसको भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे. So we have written a file system and we have categorized the Windows OS, Linux OS, and Mac OS, right? So for 3 of the OS, we have written on which they have based on. So for Linux OS, Unix; for Windows, Windows anti-kernel, and Windows their own kernel. Or like for Mac OS, they have based on a Unix. Okay. Now let's just discuss on the file system used for Windows. Which file system? So we have several categories, like we can write NTFS or FAT, and give me 1 minute, guys. I'm getting a call. So I'll connect in 1 minute. Okay, so we are discussing that. So for Windows NTFS and FAT is there. So in FAT, there are several like kind of versions are there: FAT 12, FAT 16, FAT 32, and XFAT. Okay, so later on, like we'll have to discuss in a detailed way. So yeah, further. Till further notification, guys, don't ping for the recordings. I'll update accordingly. So wait for the further notification. So for Linux OS, Unix, what are the file system that is using actually? Is there is anybody who are having answer? No. EXT. Extended file system, right? So in a EXT, we have a several category like EXT2, EXT3, EXT4, right? So these are the file system Linux is generally using, 3, 4 we can say, and some other file format also Linux is supporting, that is a JFS, XFS, right? So these are. Or ZFS sometimes.
for some of the file formats like ZFS, JFS or like BTRFS. So for these format, आप थोड़े इसको detailed way में अलग से search करके देख लेना. Okay. So what are the file format that Mac OS is using? Apple file system. Yes. So like right now, and sometime NTFS and FAT. APES we can see APES, right? APES, or in older versions of like that Mac OS, generally we are using the HFS, right? So right now, like this is a new one Mac OS is using, right? So this is actually Apple file system. We can call apps, right? So these are the short summary, whatever we have written. Let's just discuss a little bit deeply about all those file format. And tomorrow we are having a session on hard disk file system, right? So we'll discuss about the cluster, sector, or like magnetic tapes and the other thing, floppy disk, SSD, and all and all. So today we are going to cover up about the file system. Okay. So I'm writing a file system. File system. So what is file system actually? क्या है file system? जो भी चीजें हम देख रहे हैं. So this is nothing but a method actually, right? To store, organize, manage files and directories in storage devices. So we have several like hard disk, SSD, or like in Android we have an internal storage. So whatever the pictures, media, videos, like music, data we are collecting now. So in our internal storage or like hard disk or like SSD, how it will be stored. Like we have a searching technology कि Windows के इसमें आप search कर सकते हैं better तरीके से, and which file system is providing the more security. Okay, so for Windows actually NTFS is providing the more security as compared to the FAT. Sometime in an exam there will be a question like what's the difference between NTFS and FAT. So one or two reasons are there, like FAT is not supporting the maximum size of memory and NTFS is supporting the काइंड ऑफ 16 TB और समथिंग लाइक दैट. तो वहां तक वो बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडलिंग कर पाते हैं. And that's the reasons if you have those devices and those devices are supporting the FAT formats of file storage, तो अगर बहुत ज्यादा कैपेसिटी में आपका स्टोरेज फुल हो जा रहा है वहां पे, so sometimes it can slows your processor और like जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको भी स्लो डाउन कर देता है अगर पूरे के पूरे फाइल आपने या स्टोरेज आपने फुल करके रखी हुई तो. Okay, so I'm not writing the like definitions of file system. That is like small definitions are written in a rough content. I'll share that after this session. So basically this is the method and an operating system uses to store, organize and manage files and directories on a storage devices. Okay, majorly we have to discuss about the these file systems. So let's just discuss one by one. First one is FAT. The full form is file allocation table. File allocation table. File allocation table. Okay. This one. Now, what is this FAT format? So basically, Windows or like older version of Windows are using, or sometimes like newer version of Windows are using to, we can say. Okay, so this is an older file system used by older version of Windows and other operating system. That's it. Okay, there are some versions like I guess 1977 or something like that. I'm not remembering the exact year. Whenever that FAT file systems had just discovered. So that particular families, FAT families include FAT 12, sorry, 12, FAT 16. These are some versions according to the size, memory size that FAT file format is capable to handle. Okay, so initially that was discovered FAT 12 and then FAT 16 and then FAT 32 and then extended FAT. So FAT 12, FAT 16, file allocation table 32 and XFAT.
generally some like a special kind of like flash memory and a special kinds of laptops have these supportable file system XFAT, because it has a maximum range of like size capacity to handle, I guess around 512 terabyte TB. Okay, let's just discuss one by one in short. और ये याद रखना, आप जितने भी चीजें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपका काम होगा इसको डिटेल में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे उस रफ नोट्स में, और लाइक आई एम राइटिंग इन अ पेंट, सो आप अगर आप स्क्रीनशॉट या उसको नोट डाउन वगैरह भी कर रहे होंगे, सो इन डिटेल वे में यू हैव टू स्टडी एफएटी। तो उसके बाद में ना आपको एक एज एन समरी जैसा यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन, तो वो याद रह जाएगा आपको, ठीक है। बहुत सारे थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स हैं फोरेंसिक्स में और अकॉर्डिंग टू द CHF5 मॉड्यूल, सो याद रखना काफी मुश्किल है, इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाते चलो ताकि आप उस टॉपिक को देखेंगे एंड यू गाइस हैव रिमेंबर्ड एक्चुअली इजीली। सो FAT 1 2 ना 12. So initially when file allocation table has just discovered na, so it has like a common or like a small size of memory handling capacity. Okay, generally FAT is using right now in a USB or like external hard drives or sometimes Windows. So ये सारे जो डिवाइसेस हैं या फिर तो OS हैं या जो भी आप बोल लो, उसमें FAT यूज किए जा रहे हैं। ओके, the oldest system that is used in FAT, that is FAT 12, and basically that is used for floppy disk. Floppy disk. And what's the size for that? I guess 16 MB max size I'm writing. Okay, max size supportable in FAT 12, right? 16 MB, not megabit, megabyte. Okay. So this one the story of FAT 12. Like in short, we just have to remember like, okay, what is FAT? So FAT is actually a file allocation table, and this is the oldest pattern or like a structure in which like older version of Windows are actually using to store or to organize the files. Okay, or the whole family of FAT will start from the FAT 12. This is actually firstly developed or like implemented, and the capacity for that is 16 MB. Sorry, ignore the spelling for the floppy. Okay, and that is used by the floppy disk actually. उसकी क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती नहीं है, तो चार आप कभी भी देखेंगे लैपटॉप वगैरह में तो 4 MB 7 MB and the max size will be 16 MB. Okay, thereafter we have developed FAT 16 to increase the size handling capacity, right? And that is used mostly for the older version of mobile data media, we can say, used for mobile data media. Okay, and max size it can handle is that 4 GB. 4 GB. जिनको समझ में नहीं आ रही, that means if any OS or like any devices is supporting the file format of structures ना FAT or like NTFS, so that has some limitation कि अगर आपके पास में इंटरनल स्टोरेज 4 GB तक की है और लाइक फ्लॉपी डिस्क 16 MB से नीचे तक की है, सो वेल इन दैट केस दैट विल वर्क प्रॉपरली। अगर उसके ऊपर जाता है आपका स्टोरेज एंड दैट डिवाइस इज स्टिल यूजिंग द FAT 16 और लाइक लेट्स सपोज FAT 32, तो उस केसेस में दैट विल इफेक्ट इन एनी वेज, वो किसी भी तरीके से इफेक्ट कर सकता है आपके सिस्टम को चलने में। दैट इज द मेन रोल। ओके, so this is the story or like concept behind FAT 16, and to increase the more capacity to handle more file, we have FAT 32, और currently ये Windows 7 XP वगैरह वगैरह में और sometimes अभी कुछ older versions of latest Windows वगैरह में भी 11 में नहीं, उसमें पता नहीं, देखना पड़ेगा मुझे, तो used होते हैं कहीं पे। And what's the story for that FAT 32? So 32 I guess कितना साइज लेता है वो? मेरे दिमाग से उड़ गया। FAT 32, let me just search. 4 GB लेता है।
कितना आता है? किसी ने गूगल करा? 4 GB लेता है मुझे जितना तक। 4 GB 4 GB FAT32 हैंडलिंग साइज। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है? मैं तो बताने के लिए बता दे रहा हूँ, आपको एग्जाम देना है। FAT32 विंडोज। sometimes FAT is also supportable in Linux too, okay? So multiple क्वेश्चन अगर आए तो अकॉर्डिंगली आप हैंडल करना। 32 GB एंड अप टू 16 TB ना? हाँ मुझे लग ही रहा था इसमें, क्योंकि जो NTFS है ना, NTFS भी वैसे ही कुछ जाता है, बट कोई नहीं, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज इतना दिखा रहा है एंड मैक्स ड्राइव साइज इज दिस। सो FAT32 कैन हैंडल 1632 GB था, 32 GB इसकी क्या थी? अच्छा 16 TB था ना ड्राइव साइज। अदर ओएस के लिए इतना 32 GB फॉर विंडोज, ठीक है, याद रखना इसको। ये कुछ अलग ऐसे डाटा है जो कि पूछे जा सकते हैं। सो 32 GB फॉर विंडोज स्पेसिफिकली ड्राइव साइज एंड मैक्सिमम फाइल साइज आपकी 4 GB की, जो नॉर्मली ये हैंडल कर पाता है। अगर आप 10 GB की 12 GB की फाइल को आप इधर उधर कॉपी पेस्ट है उस पर कुछ हैंडलिंग वगैरह कर रहे हैं, सो मे बी FAT32 विल हैव टू फेस सम अदर इश्यूज और लाइक प्रॉब्लम्स की काफी स्लो डाउन हो जाएगा या कुछ अदर तरीकों से वो करेगा, बट दैट इज द मैक्स साइज फॉर विंडोज। इसको भी याद रखना, ये मैक्स साइज 32 GB max size for Windows. So this is the story for FAT32, right? Thereafter, to extend the more size of capacity handling, we have extended FAT. इसका फुल फॉर्म वही है, ठीक है, extended FAT, and it has a capacity of, उस पर कुछ अलग आ रहा था, बट मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम 512 आई गेस, एक बार कंफर्म कर लेना। इतना टेराबाइट, उसमें 16 टेराबाइट लिखा हुआ आ रहा है, देख लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो दिस इज एन ऑप्शनल। मुझे कुछ जगहों पे डाटा में ये दिखे थे, कुछ जगहों पे डाटा में 16 टेराबाइट दिखा था, ठीक है? मुझे भी अभी CHFI के क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंगली मुझे पूरा डिटेलिंग निकालना पड़ रहा है, एंड बिफोर टेकिंग द क्लासेस आई विल हैव टू आल्सो प्रिपेयर फॉर 1 आवर, सो दैट कि वी विल ओनली फोकस ऑन द कंटेंट्स जो कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो और कुछ चीजें छूट ना जाए। फिर भी मुझे लगता है कि 10% 15% रह जाएंगी, जो भी मॉड्यूल्स हम कवर अप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। एंड I have just find out so many contents are there and एक मंथ में तो बिल्कुल खत्म नहीं हो पाएगा CHFI का। मैं आज शौक था उसके सारे मॉड्यूल्स और क्वेश्चन वगैरह देख के, बिकॉज इसमें कई सारे ऐसे भी चीजें हैं, अगर मैंने वो चीजें नहीं बताई तो आप उसको एक्सप्लोर भी नहीं करोगे। दोज आर एक्चुअली फंडामेंटल, ओके? तो अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई कि मैं कम से कम ना हर चीजें बता दूं, और एटलीस्ट आई विल ट्राई टू गाइड यू कि आप इसको पढ़ लो, तो पढ़ ही लेना उसको। अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल करा हुआ है, वी डोंट हैव अ लाइक हैक्टिक सिचुएशंस, तो अभी इनिशियल से ही आप अगर थोड़ा डीपली पढ़ते चल रहे हैं तो अलग से एक्स्ट्रा टाइम बाद में प्रिपरेशन करने के लिए लगाना नहीं पड़ेगा। एज आई हैव डिस्कस इन व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट क्लासेस कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 80 to 90% सिलेबस वैसे ही खत्म हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट CHFI एग्जाम, राइट? सो ठीक है, so we have done with the FAT file allocation table. We have FAT12, FAT16, FAT32, and extended FAT. Okay, and what are the roles for that according to the size and which device is actually using? We have discussed all these things. Okay, thereafter we have to discuss about the NTFS. NTFS, and what is this? This is a new technology file system. Technology file system. Okay, and used in a newer version of Windows, we can say, or like modern file system used by Windows, and it supports actually a feature such as like file or folder permissions or like compression, encryptions, and provide the better security, a kind of thing. Okay, and it will lead to the maximum
maximum size handling, that is 16 TB. Okay, so that is more than enough, so that अभी जितने भी मैक्सिमम जो विंडोज के मॉडर्न वाले जो लेटेस्ट ओएस चल रहे हैं, दैट इज एक्चुअली सपोर्टिंग द NTFS. सो उसमें कई सारे एक्सेसिबिलिटीज मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक इंक्रिप्शंस एंड परमिशंस वगैरह वगैरह के, एंड सिक्योरिटी वो भी कि ज्यादा सेफली एंड सिक्योर है वहां पे फाइल्स, राइट? So that is the NTFS, and some other versions are NTFS2, like NTFS आपका 1 होगा 1.0, NTFS 1.1, NTFS 2, 3 करके बहुत सारा है, ठीक है, 2, 3, 4 ऐसा कुछ करके होगा, नोट लाइक दैट. 3.1 तक होगा शायद, 3.1 और 3, NTFS 3 और NTFS this one. So these are the NTFS. I guess समझ में आया होगा अभी तक. Like we have discussed only FAT. FAT is the file allocation table generally used by the older version of Windows, and it has several categories like from 12, 16, 32 and extended FAT. According to the size, we have discussed that. Okay. And another one is the NTFS, that is new technology file system. 2 to 3 major differences are there as compared to FAT and NTFS. जिनको भी एग्जाम वगैरह में सब्जेक्टिव लिखना हो वो लोग भी कुछ चीजें याद रख सकते हैं. फर्स्ट वन इज द मैक्स साइज हैंडल्ड in an NTFS file system, that is 16 terabyte, and second one is that it is actually providing the extra features and for the accessibility the data, and uske se extra providing the extra security to the data, and some features like encryption of some files or like compression and permissions and something like that. Generally जो है older file format जो हमारा FAT है उसमें बहुत सारे features नहीं मिलते हैं. Okay, so is there is any query or like doubts? Any confusion of understanding the FAT or NTFS? नहीं आ रहा समझ में? अरसान समझ में आ रहा है? यस सर. ओके, ये करते रहिए. बाकी आप लोगों के क्लासेस उसमें एक दो दिनों में रिशेड्यूल्ड होंगे, वो अलग से चलता रहेगा एट लाइक 9 PM और लाइक 10 PM. ओके सर. बाकी लोगों को मेघराज, मुक्ता आपको समझ में आ रही है? सुविधि, अच्छा किसने, श्वेता आपने भेजा था ना. मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली, आज मैं कुछ चीजें अलग एक्सप्लोर कर रहा था. सो लेटर ऑन लाइक टुमारो, डे आफ्टर टुमारो आई लेट यू नो अबाउट द फैक्ट एग्जाम. ओके. एंड सुविधि आपका भी जो 11 अराउंड के मैंने रिमाइंड कराने के लिए बोला हुआ है, रिमाइंड मी इन व्हाट्सएप, आई विल लाइक फाइंड आउट एंड आई विल शेयर इन व्हाट्सएप. यहाँ तक किसी को दिक्कत? शुड वी प्रोसीड विद अनदर फाइल फॉर्मेट? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही. सर क्वेश्चन क्लासेस मिस किए हैं क्या जितने लोगों को समझ में नहीं आ रही है? हम तो अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल्स चल रहे हैं. अच्छा, ये इंग्लिश वगैरह के होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? व्हाट्स द रीजन? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? किनको किनको सही से समझ में आ रहा है जो मॉड्यूल्स हम कवर अप कर रहे हैं? काफी समरी वाइज में कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ताकि बहुत ज्यादा हेक्टिक ना पड़े. अगर मैं PPTs को फॉलो करके पूरा उसको रीड डाउन करने लगूँ ना, सो दैट विल वेस्ट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से रखना है. पढ़ना आपको है, मुझे सिर्फ हर चीजों को बता देना है कि हाँ ये चीजें कुछ न्यू न्यू पॉइंट्स हैं, लाइक ओके, जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं. मिस हुई क्लासेस तो नहीं समझ में आएगा. और किसको? मेघराज आपको भी नहीं समझ में आई? पार्थ, आपको तो समझ में आ रहा होगा. ओके, so for thereafter we have to study the ext. Okay, and the full form for that is extended file system. Ext means extended file system used by Linux.
अभी इसके डेफिनेशंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो दैट इज ऑलरेडी कंसिडर्ड a file system commonly used on a Linux or like Unix based operating system. So this is commonly used in Linux or Unix based operating system. And the first OS अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कहीं जगह पे पूछा भी गया था, so always choose the Unix. Okay. उसी पे बेस्ड बना था, या कुछ क्वेश्चन हो सकता है फिल्टरिंग में, एक बार क्वेश्चन बैंक भी कभी को ओपन करूंगा, उसके थ्रू जाएंगे हम. So there is nothing, right? Okay, so what's the special things on like Linux or you know extended file system? So यहाँ पे भी वही सारे चीजें हैं जो that is NTFS जो हमें प्रोवाइड करा रहा है. So more accessibility और like उसमें आपकी securities हैं and directories and hierarchical features आपके उसमें extra add on हो जाते हैं, तो something like that. But majorly मुझे सिर्फ इन शॉर्ट इतना ही बताना था. बाकी इन डिटेल्स में अगर आपने कहीं कुछ क्वेश्चन देखा that is actually related to the EXT and that is in a more detailed way कि उसमें कुछ और डिटेल्ड वे में आस्क किया गया है, so accordingly आप उसको कवर अप करते चलना. या कुछ मिलेगा तो फिर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन फॉरवर्ड करके पूछ लेना उसमें. But that question is actually asking that is actually asked in a CHFI exam or from any sample you guys are preparing. Next one is that HFS that is used in an older version of Mac OS. Okay, that is hierarchical file system. Hierarchical file system. Hierarchical file system. Ignore the spelling if there is any mistakes. So basically, a file system used by the Mac OS, जो हमने already देख रखा है, लेकिन the older version of Mac OS, अभी newly Mac OS जो है used कर रहे हैं Apple file system. Let me just write. Okay. So this is actually Apple file system. Apple file system. Okay. Or you guys can remember this as an used by Mac OS, or we can say new file system. पहले के क्वेश्चंस में HFS वगैरह टिक हुए जाते थे, बट अब एप्स करना, ठीक है, कुछ चीजें अपडेट हो जाती हैं. So new file system introduced by Apple, okay, for their Macs and iOS devices. So generally, apps is used for that purposes. ओके इसके ईयर्स वगैरह इतना मैंने नोट डाउन करके नहीं रखा हुआ है, आप कहीं ऐसा कुछ पूछा उतना नहीं जाएगा. एंड इससे रिलेटेड कुछ हायरार्किकल एंड डायरेक्टरीज वगैरह आएंगी तो वो हम स्टडी करेंगे. डायरेक्टरीज हमें अलग से पढ़ना है, ठीक है, हर एक में लाइक डायरेक्टरीज हायरार्किकल थिंग्स इन लिनक्स बेस्ड ओएस, लिनक्स फाइल सिस्टम, और लाइक विंडोज बेस्ड फाइल सिस्टम, और लाइक मैक बेस्ड ओएस. ओके, इसलिए मैंने बोला कि काफी डेप्थ है. अगर आप फोरेंसिक्स करने जा रहे हो ना, इतनी सारी चीजें स्टडी करनी पड़ेंगी कि आपको ओवरऑल हर चीजों की नॉलेज होनी चाहिए. उसमें आपको कई सारे VAPT के कुछ अटैक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं. बट मेजरली मुझे जहां तक लगता है कि अगर 60 to 70% अगर कट ऑफ है तो हो जाएगा क्रॉस. अगर कुछ चीजें मिसिंग भी रही तब भी उतना टफ नहीं है. So we have done with a file system in a summary, like Windows OS, Linux OS, and Mac OS, on which like they have based on, and these all. Is there is any doubts in any FAT or like NTFS or
extended file system or like HFS or like apps. In summary तो I guess समझ में आई गई होगी. Yes. सर एप्स के फीचर्स क्या है? See, जो HFS है ना, कहाँ गया? हाँ, hierarchical file system. So that is like little bit more improvised or like more improved we can say. So हम HFS का देखते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही रहेगा. अगर ऐसा कुछ फीचर्स आए HFS में एप्स में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें. तो HFS या फिर एप्स दोनों का कंबाइंडली वी कैन से कि इसके फीचर्स क्या हैं. सो लाइक गिव मी 1 minute guys. Okay. Yeah, we are discussing on the HFS and apps. I'm audible? Actually कॉल आते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. Yes, sir, audible. Okay. हाई सेल कैपेसिटी में नहीं ऐप कितना मैक्सिमम साइज हैंडल करता है. ओके, मेरे पास भी नहीं है, एक बार देख लेना गूगल करके. ठीक है. मेजरली द डिफरेंस इज दैट एप्स ना इन लोगों का अपना स्ट्रक्चर है. ठीक है. अगर आप स्पेसिफिकली एप्स की बात करें, इसके पहले HFS चलते थे, तो इन्हें HFS जो आपका सिक्योरिटी और जो स्ट्रक्चर जाते थे, हैंडलिंग जाते थे, उन लोगों ने ऐसा कुछ कंपेटेबल बनाया था कि विद दैट OS एंड विद दैट कर्नल दैट फाइल सिस्टम इज मोर सपोर्टेबल एंड इन टर्म्स ऑफ आप एक्सेसिबिलिटीज बोल सकते हैं, या वो मोर स्पीडली काम करेगा और लाइक द सर्चिंग टेक्नोलॉजीज. तो वो सारे छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन किए गए थे रेदर देन द साइज. कि अगर आप साइज की बात करें तो साइज तो ये मैक्सिमम हैंडल कर ही सकता है, बट दैट इज मोर कैपेबल टू हैंडल कि ये अपने प्रोसेसर के साथ में या फिर तो कर्नल के साथ में दैट इज मोर कंफर्टेबल इन ऑल मैक ओएस. तो एप्स के ऐसे कोई खास फीचर्स नहीं है कि ये लिनक्स बेस्ड ओएस और लाइक विंडोज बेस्ड ओएस से ज्यादा ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता होगा. सो वी कांट से लाइक दैट. बट हाँ, आप म्यूट कर लो जिसने भी पूछा. आप म्यूट कर लो जिसका माइक ऑन है. आपका जो क्वेश्चन पूछना होता है ना, तो पूछ के आप म्यूट कर लेना. ठीक है. सो NTF एज कंपेयर टू द NTFS वी कैन से कि दिस इज प्रोवाइडिंग अ मोर सिक्योरिटी बट नॉट विद द कंपैरिजन ऑफ लिनक्स. ठीक है. तो दोनों जगह पे एक तरीके से आते हैं, बट इन लिनक्स में भी कई बार आप एक्सेस कर रहे हैं डाटा को या फिर तो सर्चिंग कर रहे हैं, तो उस केसेस में बहुत ज्यादा फास्ट वे में या उतना एक्सेसिबिलिटीज नहीं आ पाती हैं जितना कि आपका मैक ओएस देता है. सो दैट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ बेटर स्मूथनेस और लाइक हैंडलिंग. ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो बेटर प्रोवाइड करा ही रहा है विंडोज से. ठीक है. तो इन ऑल अदर टर्म्स से बाकी लोगों से आगे है एप्स की अगर हम स्पेशली बात करें तो. एंड व्हाट्स मेक इट्स यूनिक, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि दैट फाइल सिस्टम इज एज डिजाइन कि ये इनके प्रोसेसर और इनके कर्नल के साथ में बेटर कंफर्टेबल और बेटर वर्किंग दे हमारे पास में. तो रिजल्ट इसके बेहतर आते हैं. एंड अगर आपको नॉर्मली लिखना हो इसके बारे में कि एप्स के बारे में आपको ज्यादा डिटेलिंग में, तो आप वही सब लिखेंगे जो बाकी चीजों में लिखे जाएंगे कि बेटर सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू NTFS और लाइक FAT and better accessibility and the size, maximum size it is providing to handle as compared to the others. Okay. And it has its own like इनके जो अपने सिस्टम्स हैं, तो बेटर कंपेटेबिलिटी विद कर्नल के साथ भी इसका ज्यादा अच्छा बैठता है. तो ये सारी कुछ चीजें हैं. HFS का एक पॉइंट और था जो मुझे मेरे दिमाग से मिस कर रहा है. एक्चुअली मैंने मोर डिटेल्ड वे में HFS के नोट डाउन किए हुए थे कुछ बताने के लिए. एप्स क्योंकि अभी न्यूली आ रखा है ना, तो सिर्फ उसमें ज्यादा स्मूथनेस और कंफर्टेबिलिटी सिर्फ एड ऑन हुआ था. आप अगर सर्च करना एक बार तो HFS का सर्च करना. इसमें साइज को लेके कुछ था शायद. एक मिनट. HFS फाइल हैंडलिंग कितना है इसका? कितना है इसका? ये नहीं है यार. XFB ट्री नॉलेज था. हाँ, इसका डिटेल में आप पढ़ेंगे ना तो पता नहीं है, कुछ बाइनरी बीट्स एंड इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है. तो एप्स का सेम उसी पे काम करता है, सिर्फ उसने बेहतर स्मूथनेस करे. आपको पढ़ना होगा HFS का, क्योंकि मैंने वो पोर्शन उतना नोट डाउन नहीं कर रखा था उसको. तो आप इसको पढ़ लेना एक बार थोड़ा सा. मेरे अभी ध्यान में है नहीं ज्यादा, मुझे देखना पड़ेगा. HFS में कुछ तो आ रहा था, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा. ये अलग ही रूल्स एंड एल्गोरिदम्स पे चलता है.
नो मैटर हाउ स्मॉल अ फाइल इट ऑलवेज बी एलोकेटेड एटलीस्ट इतना केबीपी स्पेस। इसका कुछ तो एलोकेशंस वाले जो एल्गोरिदम थी ना एचएफएस में वो डिफरेंट थी, इसके वजह से ये बेटर स्पीड देता था एक्सेसिबिलिटी में, सर्चिंग में और बाकी कुछ कुछ चीजों में। तो वो एचएफएस का एक्स्ट्रा और जो एल्गोरिदम था उसने एक्स्ट्रा फीचर्स डाला इसमें कि एज कम्पेयर टू बाकी अदर्स ये ज्यादा स्पीड स्पीड काम करेंगे इसमें। ठीक है, इसको तो देख लेना, मुझे तो देख के बताना पड़ेगा एक बार और डिटेल वे में अगर जानना हो तो। हाँ, आप इसका और क्या डाउट थे? सर मुझे क्वेश्चन है, एम आई ऑडिबल सर? क्या क्या? हाँ पूछो पूछो, जो पूछो। सर फाइल सिस्टम कॉन्सेप्ट का वो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यूज होता है ओनली? आपकी वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है, आप एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। ओके अदर्स, आपने अच्छे से क्या आ रही है, मुझे कॉल वॉल आते रहते हैं इतने। बाकी लोगों को समझ में आया समरी? बाकी इन डिटेल वे में अच्छा क्वेश्चन किसी ने उठाया था एचएफएस का, थोड़ा डिटेल में देख ही लेना क्योंकि थोड़ा अलग है। File system is just to boost the system speed, nothing like that. Actually, every OS has its own like memory, like to store data and all. Okay, so for better smoothness of handling and accessibilities of those data ना, कि हम कोई सारे डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग, तो सिस्टम स्पीड को नहीं बढ़ाता है एक्चुअली में। अब फाइल सिस्टम अगर ज्यादा मोर कंफर्टेबल है विद दैट ओएस तो हमें बेटर स्मूथनेस मिलती है उसकी। तो बूस्टिंग वगैरह कुछ नहीं करता, सिर्फ वो हैंडलिंग करता फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम इज बेसिकली अ मेथड of handling the file or like how that will store the file so that at a time if we have to search any file so how that is actually giving the result or like how we can manage, organize and in which directories those are actually storing ताकि वो जिस टाइम पे हमें अगर लेट सपोज कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि आप रेंडमली यहाँ पे जा रहे हैं दिस पीसी पे, राइट? सो आप यहाँ से सर्चिंग कर रहे हैं कुछ फाइल को, सो इट इज एक्चुअली टेकिंग अ लॉन्गर टाइम rather than like कि अगर आपको पता है कि ये डी ड्राइव के अंदर है, आप यहाँ पे कुछ चीजों को सर्च कर रहे हैं, तो इनकी हायरार्की किस तरीके से बनी हुई है कि ये पहले फाइंड आउट करेगा, लाइक लेट सपोज यहाँ पे हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो एट फर्स्ट इट विल सर्च ऑन सी ड्राइव और लाइक डी ड्राइव और लाइक ई ड्राइव, तो इनकी क्या हायरार्की चलती है। सो बेस्ड ऑन दैट इनके स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डिफाइंड है जिस बेसिस पे हमें आउटपुट मिलते हैं कि इधर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ करना है तो जल्दी होगा, फास्ट होगा। सो दीज ऑल आर द लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली कि हम अपने फाइल्स को कितने बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? चलो सो कैश मेमोरी इज डिफरेंट थिंग, विल स्टडी दैट। For the cache memory or like other memories, we'll study that, like RAM, ROM in that particular modules because उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। So tomorrow we'll try कि SSD क्या है, HDD क्या है, एक बार में बता दूंगा आपको। वो वाला कंसेप्ट है, वो आपके प्रोसेसर स्पीडिंग या काम करने की वो जो है ना उसकी क्षमता को या पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। द मोर वी हैव द कैश मेमोरी, हम जो हाई प्रोसेसिंग वाले काम है उसको उतने इजीली कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वी कैन से कि आपका जो पहले वाला आंसर था कि दैट कैन बूस्ट द सिस्टम स्पीड अगर आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं तो। अभी ओके, सो फॉर ए प्रैक्टिस यू कैन गो फॉर द एग्जाम टॉपिक्स और यहाँ से देखते चलना and go to the popular exam and EC Council and go to this one, Computer Forensics version 10, or we have a sets of like 837 questions। तो इसको अकॉर्डिंगली कर लेना। मुझे लगता है कि यहाँ से और एक दो और मॉड्यूल से अगर आपने कंप्लीट कर लिए
पूरे अच्छे से तो डेफिनेटली निकल जाएंगे। 80-90% से ऊपर के इन क्वेश्चन बैंक का वेटेज रहता है। इनके पीडीएफ्स में डाउनलोड करके शेयर कर दूंगा। तो अभी बताओ इनके आंसर कौन देगा, किसको सबसे अच्छे समझ में आया अभी तक जितना पढ़ा है हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में? सर मैंने अटेंड नहीं किया था पर ट्राई कर सकता हूँ। ओके ठीक है, कोई भी बताना। ठीक है, इसमें रैंडम क्वेश्चन है फ्रॉम द ऑल मॉड्यूल्स। मैं सिर्फ आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, अब इन सारे क्वेश्चंस को देखो या नीचे और अब जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा क्या कि इसमें इतना कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना है कि कौन सा एक्ट लगेगा या कि कौन सी लॉ लगेगी, उसमें सारा कुछ पूछा जाएगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई गेस। हमने कवर अप कौन सा किया है? ये किया हुआ था, ये तो सबको आंसर पता चल रहा होगा। इन अ कंप्यूटर फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन व्हाट डिस्क्राइब्स द रूट that evidence take from the time you can find it until the case is closed or goes to the court? चेन ऑफ कस्टडी। हमने पढ़ा था ये। चेन ऑफ कस्टडी। चैन ऑफ कस्टडी इज द राइट आंसर। इसलिए बोला था मैंने, इतना भी बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें से आपको रूल्स ऑफ एविडेंस अभी बताए जाएंगे और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, पॉलिसी ऑफ सेपरेशन का भी कोई मतलब नहीं था। एक और तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो एविडेंस ऑफ रूल के अंदर में जाता है, बट फिलहाल के लिए इसमें मैंने बता रखा था कि इंटायरली जितने भी डिटेलिंग मेंशन होते हैं वो उस पे होते हैं। ये सभी इजी क्वेश्चन है लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है इसमें। आप लोगों ने अगर देखा होगा कि MD5 के जितने भी एल्गोरिदम्स का जो चेकसम बनता है वो मैक्सिमम करेक्टर्स जो है कितने जाते हैं देखना अभी। ठीक है, MD5 में किया तो ये सब थोड़ा पढ़ना है। ये नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना कुछ पढ़ाऊंगा। ये सब साइड टॉपिक से, क्रिप्टो से मुझे बताना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा लेक्चर्स, या पासवर्ड इंक्रिप्शन से बताना पड़ेगा, तो जाके आप ये सब क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए ओवरऑल नॉलेज थोड़ा सा रखना साइड वाइड से, कि मैं जो बता दूं उसको आप साइड से पढ़ लेना। MD5 का वही है क्या? हाँ 32 तो है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने अभी नॉर्मली देखा है ना। आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा MD5 तो कहाँ यार, MD5 का ऑफिशियल वेबसाइट यही है क्या? चलो कोई नहीं, इसमें कुछ टाइप करें, हेलो। ये जो दिखा, आप कोई भी लेटर टाइप करो यहाँ पे, ये 32 ही कैरेक्टर के होते हैं। तो अगर आपने क्रिप्टो अगर पे थोड़ी प्रैक्टिस की होती कि SHA-1 में क्या जाता है, उसके हैजेस कितने इसमें होते हैं, या फिर तो SHA-256 का क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा लक्ष्य दिस इज दिस, ठीक है, जनरेट, तब भी उसका इतना ही आएगा। सो दैट इज 32। तो ये सब कॉमन कॉमन क्वेश्चन थे, अगर आपने थोड़ा पढ़ा होता तो बता देता आपने। ये भी इतना कुछ बिग डील वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको पढ़ना। ये हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि अभी सेक्टर वाली कल हम पढ़ेंगे, तो उसके बाद मे बी यू गाइज आर कैपेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन था, इसका बताओ। जैसे हम ये तो लोग अभी पढ़ा हमने। लो मॉडल, यस, जैसे हम बेस 64 को आइडेंटिफाई करते हैं कि इक्वल टू से, वैसे MD5 और शाह को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये MD5 है और ये शाह है? देयर आर सेवरल टूल्स ना कि उसे आप हैज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे तो हैज आइडेंटिफाई अगर आपने हैज वो करेक्ट चला जाता है कंसेप्ट, BAPT के कंसेप्ट में बताया जाता है कि अगर आपको जो है कोई भी हैजेस मिले हैं, सो देयर आर सेवरल टूल्स वी कैन आइडेंटिफाई कि पहले किसमें वो हैजेस बने हैं, उसके बाद वी आर ट्राइंग टू क्रैक दैट। तो उसमें आप पुट करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। ऐसा कुछ आप करेक्टर वगैरह से नहीं पता लगाएंगे। ये बट जनरल क्वेश्चन था कि कितने करेक्टर्स पे जाते हैं, तो काफी बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ मैं वो दिखा रहा था। ये तो अभी पढ़ा हमने, सबको आंसर पता होगा इसका। सर BST यूनिक्स। यूनिक्स, क्योंकि यूनिक्स बेस्ड एक ही ऑप्शन है, बी इज द आंसर। और कुछ क्वेश्चन है क्या? बिफोर टेस्टिफाइंग एन एक्सपर्ट व्हाट मस्ट एन अटॉर्नी टू डू फर्स्ट। ठीक है, चलो इस पे तो अब ऐसे बता सकते हैं।
ये भी पढ़ना है हमें, बिट स्ट्रीम डिस्क क्या होती है, डबल स्पेस क्या होता है, तो मुझे बहुत पढ़ाना पड़ेगा। सोचो एक एक मॉड्यूल्स पे इतने सारी चीजें मुझे ढूंढ ढूंढ के बतानी पड़ रही है, तो एग्जाम में बन नहीं पाएंगे क्वेश्चन। तो जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ मेहनत करने की, बाकी की कोशिश आप करो, लेकिन सही से मेहनत करते चलेंगे तो हो जाएगा, 1-1.5 महीने से ज्यादा का नहीं लगना है। अभी ये सब बताना पड़ेगा मुझे, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, प्रिंट राइट क्या है, बैंड मार्क क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। अभी ये बताओ, ये तो अभी पढ़ा हमने। क्या बताया था, बताओ मेघा बताओ। हाँ ठीक है, डी इज द राइट आंसर, बच गई। हेक्स एडिटर तो टूल हमें यूज करना है तो पता चलेगा। सो ऑल आई से इज दैट कि जितने भी इसमें छोटे मोटे टॉपिक्स कवर्ड अप हो रहे हैं मैं उसको टच करने की पूरी कोशिश करूंगा, एंड यू गाइज आर लाइक लिसनिंग प्रॉपरली, तो आपके 70% क्वेश्चन का जवाब आप वैसे ही दे दोगे। इस वजह से मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, सारे नोट्स वगैरह मैं खुद यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। इसमें से मुझे जो मुझे लग रहे हैं क्वेश्चंस को देख के कि एक आध दो और छोटे छोटे जो टॉपिक्स है, जैसे आपका ये बिट स्ट्रीम और लाइक आपका डबल स्पेस, ये सब मैं नहीं बताने वाला था, मैं सिर्फ सेक्टर और बाकी सब बता के छोड़ देता, बट कल आपके क्लासेस में मुझे वो भी बताना पड़ेगा। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हो सके उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपके पास में मॉड्यूल्स है, गो थ्रू दैट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, कि अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा प्रिपेयर्ड रहें। ओके, सो टुमारो विल मीट अगेन ऑन अंडरस्टैंडिंग द हार्ड डिस्क, और लाइक उसके जो क्लस्टर हैं, सेक्टर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा सम अदर पोर्शन। उसके बाद फिर अगर समय बचा तो डायरेक्टरी विल कंक्लूड टुमारो और लाइक डे आफ्टर टुमारो। उसके बाद फिर डायरेक्टरीज और लाइक क्लस्टर वाले और लाइक हार्ड डिस्क रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, इतने आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक दिन में और टाइम लूंगा, जो इन्वेस्टिगेशन के जो फेजेस में कुछ चीजें थी लाइक रूल ऑफ एविडेंस जो मैंने छोड़ दिया था, या एक दो और चीजें, वो क्वेश्चंस को देखने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, तो वो चीजें मैं बता दूंगा दोबारा से। एंड फ्रॉम द थर्ड टॉपिक और लाइक उसके बाद हमारी जो है स्टार्ट होंगी जो टूल बेस्ड प्रैक्टिस जो क्वेश्चन आते हैं उस पर काम करेंगे। हमारे पास अगला टॉपिक क्या है उसमें, ओके, डाटा एक्विजिशन और डुप्लीकेशन वाला जाएगा, तो वहां से कई सारे टूल्स बेस्ड आएंगे। इन केस पे क्वेश्चन आता है, ऑटोप्सी पे क्वेश्चन आता है, हेक्स एडिटर पे क्वेश्चन आते हैं, एफटीके इमेजर पे आता है, व्हाटएवर द टॉपिक्स आई हैव मेंशन ना, सो 2 to 3 क्वेश्चंस विल डेफिनेटली देयर। इन सारे टॉपिक से 2 to 3 होंगे आपके वहां पे। चलो अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करो, देखते हैं कितनी प्रैक्टिसिंग चल रही है। एट द एंड मैं खुद एग्जाम लूंगा और उस एग्जाम में देखेंगे कितने लोग क्वालिफाई कर पा रहे हैं। उसमें आप अगर 70-80% क्रॉस कर गए तो समझ लो आपका CHA 5 हो जाएगा। मैं सिंपली इधर उधर से सारे क्वेश्चंस को असेंबल करके और रैंडम टेस्ट होंगे, वही सेम 150 क्वेश्चन 4 घंटा, जस्ट टू इंश्योर कितने लोग प्रिपेयर्ड हैं, कितने लोगों ने अच्छे से कंप्लीट किया है इन चीजों को। ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल गाइस।